guys, hi, I am back with another video in the series of Diwali DIYs, and this is the third video of the series. So if you've not watched the previous videos, go and click over here to watch other videos. And in today's video, I am sharing with you all a ready to use rangoli which is made on an MDF board, so that आप just उसको एक प्लेस से उठा के you just have to keep it and you're good to go. The area feels all decorated. This rangoli is inspired by Lipan art, which is a art form of Kutch, Gujarat. And yes, without wasting any time, let's get into the process. Okay, so first thing first, things that you require. This is an MDF board cutting of a peacock. तो ये मुझे अपने local store में मिला था. So do check your local stores. Another cutting I have is of a circle. After that, I have some mirrors in different sizes and shapes. So Lipan art basically mud and mirror art होता है. So definitely you are going to need a lot of mirrors in it. So this also I brought from local stores. If I find it online, I will leave the link for the same in description. So yes, ये सब अलग अलग शेप के मिरर्स है. Some are round, some I have bought in leaf shape. Also bought this smaller leaf shape mirrors. So we'll plan out and figure out how they are to be arranged, but for now these are the materials that you need. And the other materials you require are Fevicol MR and some marble powder. Instead of marble powder, you can also use ceramic powder or POP. POP is easily available everywhere. मुझे मार्बल पाउडर ढूंढने को काफ़ी परेशानी हुई एंड एट द एंड आई ऑर्डर्ड इट ऑनलाइन. सो येस, आई लीव द लिंक for the same in description. Other than that, you need some acrylic colors. I am using colors of blue over here and some paintbrush and a little sponge. Now let's start with the basic step of painting the peacock shape. So I am using a darker shade of blue at the outer side. I just realized that मेरे सारे दिवाली सीरीज़ के वीडियोज़ में there is a peacock theme. I wonder, I love peacock theme. So yeah, that's why I am making everything in the same theme. Okay, well, coming back to the process, मैंने सारा ब्लू कलर पहले पेंट ब्रश से अप्लाई किया था एंड देन लेटर ऑन मैंने स्पंज से उसको डैप किया था सो दैट एक अच्छा सा टेक्सचर आ जाए. आई एम डूइंग द सेम फॉर द टील ब्लू कलर एज वेल. थोड़ा in the end I am mixing the dark blue and the teal blue color so that it creates a shade. और फिर जो सेंटर में पोर्शन बचा है वहाँ पे I'll be painting it white with the same technique. Once this is done, I am keeping it for drying and till that time हम अपने सर्कल वाले कटिंग पे शिफ्ट होते हैं. सो मैंने इसका सेंटर फाइंड आउट किया है एंड विद द हेल्प ऑफ द राउंडर आई एम मेकिंग फ्यू सर्कल्स ग्रिड के लिए. जैसे हम मंडला आर्ट पे करते हैं, सिमिलरली हमें इस पे ग्रिड फॉर्मेशन करना है. सो यर मैंने मिरर्स लेके आई एम फिगरिंग आउट कि एग्जैक्टली विच मिरर इज़ गोइंग वेयर. सो आई एम मेकिंग ग्रिड्स in circle pattern as well as the line pattern, so it is easy for me to place the mirrors in a symmetric manner. तो अगर symmetric नहीं रहा तो वो circle पे it looks very bad. So whenever you are taking any design in circle, make sure it is symmetric.
सो दिस इज़ हाउ द ग्रिड लुक्स, और मैंने रैंडमली लिया है, देयर इज़ नो मेजरमेंट, रैंडमली सर्कल्स ड्रॉ करे हैं. एंड नाउ आई एम जस्ट फिगरिंग आउट हाउ द मिरर्स विल एग्जैक्टली बी प्लेस्ड एंड विच मिरर विल बी प्लेस्ड वेयर. आई थिंक ये काफ़ी अच्छा लग रहा है. सो लेट्स रिमूव द मिरर्स नाउ एंड स्टार्ट पेंटिंग द सर्कल. सर्कल पेंट करने का टेक्निक भी सेम है जैसे पीकॉक किया था. सेंटर में आई एम पेंटिंग इट वाइट, बट यर आई एम गिविंग अ वाइट कोट फर्स्ट. आई रियलाइज़ कि वाइट कोट देने के बाद कलर ज़्यादा प्रॉपरली और अच्छे से दिखते हैं. सो येस, वन स्टेप एक्स्ट्रा यहाँ पे जो मैंने किया है, आई हैव गिवन अ वाइट कोट, और उसके ऊपर देन आई एम पेंटिंग इन अ सिमिलर मैनर. यहाँ पे भी आई एम पेंटिंग द कलर्स अकॉर्डिंग टू द ग्रिड. जो ग्रिड पहले ड्रॉ की थी बोर्ड पे, उसको फॉलो करते हुए आई एम पेंटिंग, ताकि वो ऑल सिमेट्रिक लगे. एंड आफ्टर पेंटिंग कंप्लीट हो तो मैं एक लाइटर वर्जन ऑफ द ग्रिड वापस बनाऊंगी विद द हेल्प ऑफ राउंडर, सो दैट मुझे ग्लास चिपकाने के लिए ईजी हो जाए. सो वंस ये पेंटिंग हो जाए, आई एम लेटिंग इट ड्राई फॉर सम टाइम, और तब तक वील मूव ऑन टू द पीकॉक जो ऑलमोस्ट ड्राई हो चुका है. सो द कलर इज़ ऑलमोस्ट ड्राइड, और अभी मैं इसके ऊपर ग्लासेस चिपकाऊंगी. सो आई ऑलरेडी फिगर्ड आउट कि ये कैसे करना है, कैसे ग्लासेस स्टिक करनी है. सो आई एम डूइंग द सेम, फेविकॉल के हेल्प से जस्ट स्टिकिंग द ग्लासेस. ओके, वंस सारे मिरर स्टिक हो जाए, द नेक्स्ट स्टेप इज़ द मड वर्क. सो इसके लिए आई एम मेकिंग अ कोन आउट ऑफ प्लास्टिक. तो कोई भी छोटा सा प्लास्टिक का टुकड़ा लेके यू जस्ट हैव टू मेक अ कोन. ये प्री प्रेप करके रखना है. द नेक्स्ट स्टेप इज़ मार्बल पाउडर वाला स्टेप. सो आई एम टेकिंग 3 स्पून्स ऑफ मार्बल पाउडर, और उसको मैं फेविकॉल के साथ मिक्स करने वाली हूँ. सो यू हैव टू अंदाजे से टेक ऑलमोस्ट 1:1 का रेशियो ऑफ पाउडर एंड फेविकॉल. रिमेंबर, पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है. जो भी लिक्विड होगा वो जस्ट फेविकॉल रहेगा. एंड मिक्स दीज 2 थिंग्स वेरी वेल. और इसको तब तक मिक्स करना है और फेविकॉल तब तक ऐड करना है जब तक आपको काइंड ऑफ ऐसी कंसिस्टेंसी ना मिले. लुक, इट शुड बी जस्ट फॉलिंग फ्रॉम द स्पून. सो इतनी कंसिस्टेंसी हमें चाहिए. आफ्टर दिस इज़ डन, द मिक्सचर इज़ रेडी. यू जस्ट हैव टू ऐड द मिक्सचर इन द कोन. सो सारा मिक्सचर कोन में ऐड करके कोन को ऊपर से सील करना है विद द हेल्प ऑफ सेलो टेप.
सो दिस इज़ व्हाट इट लुक्स वंस द कोन इज़ मेड प्रॉपरली. और उसका स्टार्टिंग वाला टिप अकॉर्डिंग टू द थिकनेस आपको कट करना है एंड सी द कंसिस्टेंसी. सो द नेक्स्ट स्टेप इज़ आई एम गिविंग बॉर्डर टू ऑल द मिरर्स विद दिस कोन. सो जितने भी मिरर्स है उतने सबको मैं बॉर्डर करने वाली हूँ. एंड ऑल्सो आई एम गिविंग अ ओवरऑल बॉर्डर टू द पीकॉक शेप. सो इफ़ योर कंसिस्टेंसी इज़ राइट तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी और वेरी ईजीली यू विल बी एबल टू डू दिस स्टेप एंड इट इज़ इक्वली सेटिस्फाइंग टू डू दिस स्टेप. अगर आपका मिक्सचर का कंसिस्टेंसी प्रॉपर है जो आपने कोन में फिल किया है, सो लुक हाउ ब्यूटिफुली इन दैट केस द मिक्सचर विल फॉल ऑफ. सो आई एम डन विद द पीकॉक का बॉर्डर एंड अभी मैं रिमेनिंग जो भी ग्लास पीसेस है और जो रिमेनिंग स्पेस है उसको फिलअप कर रही हूँ. एंड immediately I am giving the border with the mixture. The cone mixture that I am using, इसके हेल्प से you can make any kind of design you want और ये एक 3D effect देता है. So yes, not necessary that you have to border or you have to make the same as I am doing. आप आपकी creativity use करके you can use it in some other way but the technique remains the same. I am almost done with this peacock piece और same तरीके से I have made another one with same design. So I have a set of 2 peacocks now. And look how beautiful this mud mirror work is looking. Now next let's move on to the circle part. So जैसे हमने पहले decide किया था I have stuck all the mirrors accordingly और इसके ऊपर भी हम थोड़ा mud work करेंगे. Similarly जैसे हमने पीकॉक पे किया था आई एम बॉर्डरिंग ऑल द मिरर्स प्लस आई विल बी मेकिंग सम मोर डिज़ाइंस टू गिव इट अ मोर प्रिटियर लुक. आई एम डूइंग इट वेरी स्लोली ताकि जो भी लाइन्स आ रही है वो क्लीन आए. So I'm almost done with the cone work. So the next step is I am trying to make a different color cone. So जो भी procedure पहले बोला था उसके हिसाब से मैंने मिक्स करके मार्बल पाउडर और फेविकॉल को मिक्स करके आई हैव एडेड सम ब्लू कलर इन इट एंड इसको कोन में फिल कर लिया है. सो द लाइटर पोर्शन ऑफ द बोर्ड दैट इज़ वाइट आई एम मेकिंग सम डिज़ाइन ओवर देयर विद दिस ब्लू कलर, तो वो ज़्यादा कॉन्ट्रास्टिंग लुक देगा.
and I am using this blue cone to make some more design. Okay, so अगर आपको मार्बल पाउडर या पीओपी पाउडर कुछ भी नहीं मिल रहा है तो मैं अनदर सजेशन और आइडिया विल बी यू कैन यूज़ 3D आउटलाइनर. आप 3D आउटलाइनर ख़रीद के उसको कोन में डाल सकते हैं या आप डायरेक्टली 3D आउटलाइनर यूज़ कर सकते हैं. द ओनली थिंग इज़ 3D आउटलाइनर में काफ़ी एयर बबल्स रहते हैं जिसके वजह से द वर्क वोंट लुक क्लीन, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट. And we are almost done with this mud mirror art and I am cleaning these mirrors now because उसके ऊपर काफ़ी fingerprints लग गए थे. So I am using earbud and a cotton cloth to clean these mirrors. And ta-da! We are done with this piece and look how pretty it is looking. Do let me know if you like this one and similarly with the peacock one. So इन सबको मैंने साथ में arrange किया है and I had bought the set accordingly. So this is how all the 3 pieces look together. I hope you liked today's video. If you liked it, do give it a try, and if you try something of a kind, do share your work with me on Instagram. The Instagram handle is mentioned below and also in the description box below. So yes, until then, stay tuned for more videos. Bye, take care, happy Diwali. If you like to see more art videos, go and click over here. If you like to see festival special videos, you can go and click over here. And to subscribe to my channel, go and click over here. Until then, bye.